So you have to study simple interest and compound interest, right? So it is basically a formula based concept, and it is also application of percentages to the extent, right? So let's start with understanding of the concept of interest. So what is interest? Interest is cost of borrowing money. So it is basically cost of borrowing. Say for example, we reside in somebody's house. What do we pay? We pay. So if you are traveling in somebody else's vehicle, what do you end up paying? Right? Similarly, when you borrow money, you use the money for some purpose, right? So you have to pay a cost for that borrowing because you have borrowed some money to use. So you have to pay something. That payment is known as. So there are two ways of calculating this interest. One is the way what we call it a simple interest, and another way is known as compound interest. ठीक है, simple interest होता है, compound interest होता है, ये हमारे दोनों तरीके हैं. Basically, let's say हम रेंट की बात करते हैं या फेयर की बात करते हैं, ये कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है. जैसे कि अगर हमें रेंट पे करना है, तो इस बात पे डिपेंडेंट है कि घर कितना बड़ा है, किस लोकेशन में है, ठीक है, कितनी फैसिलिटी है, इन सारी बातों पे क्या डिपेंड करेगा आपका रेंट. ऐसे ही फेयर डिपेंड करेगा, किन बातों पे फेयर डिपेंड करेगा आपका गाड़ी कैसी कितनी बड़ी है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, किस टाइप का कंफर्ट है, इससे आपको वो डिपेंड करेगा अपना. आवाज नहीं आ रही दृष्टि? सर क्लियरली नहीं सुन रहा. क्लियर नहीं आ रही है अब? हेलो हेलो हेलो. यस सर. अभी आ रही है आवाज? यस सर. ठीक है, आवाज ना आए तो मुझे बताना, मुझे लग रहा है थोड़ा डिले जा रही है आवाज. सर अब क्लियर है. क्लियर, ठीक. ओके, तो जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं किसी भी पैसे पे, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स. किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? कितना पैसा हमने लिया है. ज्यादा पैसा लेंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और कम पैसा लेंगे तो कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा. दैट बोरोइंग इज नोन एज प्रिंसिपल. जो पैसा हम लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल. इट इज रिप्रेजेंटेड एज पी. It will also depend on for how much time duration we have taken the money. हमने कितने टाइम के लिए पैसा लिया है. That is known as time period, which is known as T. ठीक है. Then it is also dependent on the rate of interest on which we have borrowed money. You understand what is the rate of interest? So my interest will depend on principal, time and rate. It is always a certain percentage of the money that you have borrowed that needs to be paid as an interest. Certain percent of money that needs to be paid for. कितने लोग यहाँ पे क्लैट के हैं by the way? क्लैट, only क्लैट. हाँ जी, मनित और दृष्टि, क्लैट वाले कौन है तुम दोनों में से? आईपीएम. सर आईपीएम का हूँ मैं. हाँ, और दृष्टि? सर आईपीएम. आईपीएम, ठीक है. सिर्फ तुम.
ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट चलूंगा, जहां समझ में ना आए मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लेवल पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, ठीक है, बट फॉर ऑल अदर्स बाकी सब आईपीएम सीयूसीडी टाइप है ना। तो so interest is always a percentage of the principal. For example, let's say I ask you 20% of 80, how would you do? 20 upon 100 of 80. I mean, that is the basic essence and understanding. So interest is R percent of P. Interest is R percent of P. So R percent is R upon 100 of P. But it is interest, this rate is always per annum. Per annum का मतलब है somebody says 10% interest, so that always means 10% per annum, यानी 10 रुपए साल का. तो अगर ये 1 साल का ये है तो 3 साल का कितना होना चाहिए? into 3. 4 साल का कितना होना चाहिए? 4. तो t years का t होना चाहिए. And therefore you will see that this ends up becoming the formula of interest, you know, PRT by 100. Making sense? This is what we call as a simple interest. Should not be a problem. Now, if you want to find out amount is equal to principal plus interest. Okay. So if there is a question that certain amounts doubles in 3 years, so in how many years will it become 5 times? Let us say this is the question. A certain amount doubles in 3 years. तो डबल कितने टाइम में हो रहा है? तो हमें 5 टाइम्स करना है, तो बताओ कितने साल में होगा? कैसे करोगे सॉल्व दिस? जो भी मैंने बताया उतना सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए. सिंपल इंटरेस्ट पे कोई पैसा वो डबल हो रहा है 3 साल में, तो 5 टाइम्स बताओ कितने साल में होगा? कैसे? हाँ जी दृष्टि, मनीष, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यस सर. कैसे कर? यूनिटरी मेथड लगा रहे हो क्या? अच्छा, देखने से पता चल रहा है? देखने से ही बता देता है. इंटरेस्ट अगर पैसा डबल हो रहा है इसका क्या मतलब है? मान लो 100 रुपए हैं, डबल हो रहा है, नहीं 200 रुपए बन रहे हैं, तो ब्याज कितना है? इंटरेस्ट कितना है? 100. सो इफ आई एम हैविंग प्रिंसिपल एस पी, आई नीड टू डबल इट. सो व्हाट इज द इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट? पी. समझ में आ रहा है? So we know interest is equal to principal into rate into time is 3 years. But what is I? I must be equal to P. Only then the money will be doubled. So if this becomes equal to P, so P goes here. So R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 upon 3. Now I have to make the money how many times? 5 times. So if you are having 100 rupees, so interest must be 400. So if your principal is this is P, then I must be equal to 4P. समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट मस्ट बी 4P. सो 4P is equal to P into rate is 100 upon 3 into T upon 100. That will be the formula. P goes here, this goes here. P की वैल्यू कितनी आ गई? दिखने से 7.5 लग रहा है, तो आंसर तो नहीं है. ओके, क्योंकि जो हम फॉर्मूला है ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम. Right now the money needs to become 5 times. So money need to become, so for example, if I am having 100 rupees, I want to make it 5. But what is this 500 amount? 500 is, so I need to earn 400 rupees and I will have my own money. So own money is what I was trying to explain to you. Amount will be principal plus interest. So if this becomes have to be 5 times, so interest component will be only 4 times. Now this is a very common mistake which happens in the exam. क्योंकि हम पढ़ते इंटरेस्ट है, दिमाग में अमाउंट रख देते हैं. कंपाउंडिंग में उल्टा प्रॉब्लम है.
कंपाउंडिंग में हम फॉर्मूला अमाउंट का लगाते हैं और दिमाग में कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा होता है। अभी समझाऊंगा उसका भी कुछ क्वेश्चन, बट दिस इज वेयर द प्रॉब्लम हैपेंस। इट लुक्स वेरी सिंपल एंड एलिगेंट क्वेश्चन कि भाई डबल हो रहा है 3 साल में, तो 5 बताओ कितने साल में होगा। तो अच्छा तो फील तो आ ही रहा है कि क्या हो गया भाई, ये तो रहा आंसर। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इंटरेस्ट इज द एडिशनल कॉम्पोनेंट, राइट, दैट नीड्स टू बी अर्न। समझ में आ रहा है? इसलिए हमने 4 लिया था क्योंकि 5 टाइम्स बनाना है। इसका एक एप्लीकेशन है, दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। समझ में आ रही बात? ओके, now we need to understand the difference between simple interest and compound interest. I'll try to explain to you, and then I also give you certain formula so that you are able to, understand and do it directly, right? So what is compounding basically? Compounding is nothing but interest on interest. That is compounding. For example, I borrowed, let's say, 100 rupees from you. I at the rate of, let's say, 10% per annum for 1 year, or let's say for 2 years. तो at the end of 1 year मुझे कितना पैसा देना है आपको? 110 टोटल अमाउंट वापस करना है अगर अमाउंट दे दिया, लेकिन अगर सिर्फ इंटरेस्ट देना है तो 10 रुपीज। तो मैं फर्स्ट ईयर के एंड में आई नीड टू गिव यू 10 रुपीज बिकॉज 10% ऑफ 10 फॉर 1 ईयर इज 10 रुपीज। सेकेंड ईयर के एंड में मुझे कितना देना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट? 11 है 11 नहीं, 10 ही तो देना है सर, पर 110 हो जाएगा ना उसमें ऐड करके। नहीं, हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ना अभी। अच्छा, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड। जब हम सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं, इसका ये मतलब होता है कि जो इंटरेस्ट आपका ड्यू है वो पे कर दिया हमने। माने ये देखो, अगर मैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या करोगे आप? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100, यही करोगे। 20 आ रहा है ना, आप जो 11 कह रहे हो। यस हाँ, इसी का मैं ब्रेकअप समझा रहा हूं। मैं आपको समझा रहा हूं कि प्रैक्टिकली डिफरेंस क्या है ताकि हमारे क्वेश्चन में समझ में आ जाए। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है जब अपन ने किसी से पैसा लिया, जो हमें ब्याज उसको वापस करना था वो हमने 1 साल के अंत में वापस कर दिया, और सेकेंड ईयर में फिर जो करना था वो मैंने कर दिया ब्याज। जब भी मेन मूल जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल, वो शायद सेकेंड ईयर में हम दे देंगे, काम खत्म हो जाएगा। यानी एंड ऑफ द 2 इयर्स हमें 120 रुपीज देने पड़े। अगर हम डील क्लोज करना चाहते हैं तो 120, नहीं तो कंटिन्यू करेंगे तो फिर थर्ड ईयर में मुझे 10 रुपीज देना पड़ेगा। जब इस टाइप की डीलिंग होती है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर आपने 1 साल बाद जो मुझे 10 रुपए देने थे, वो आपने कहा जी अगले साल ले लेना इकट्ठे। समझ में आ रहा है? अगले साल ले लेना इकट्ठे। तो ये जो पैसा था वो मैंने खुद के पास रख लिया। अब मेरे पास आपका 100 रुपया तो पहले से ही पड़ा है, जिसके बदले मुझे ये देना ही पड़ेगा। क्या यार ये ओके, जिसके बदले मुझे आपको 10 रुपए तो देने ही है, लेकिन ये 100 रुपए भी तो मैंने नहीं दिए, इसके ऊपर भी तो मांगोगे भाई। आप कहोगे कि क्यों नहीं दे रहा भाई, दे। तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, उस पर भी ब्याज ले लेना। तो अब जब नेक्स्ट सेकेंड ईयर में आप कहोगे कि जी 10 रुपए के ऊपर भी तो 10% का ब्याज चाहिए मेरे को, इसके ऊपर भी मेरे को कितना रुपया ब्याज मिलेगा? 1 रुपया। क्यों मिलेगा? क्योंकि मैंने ये वाले पैसे दिए नहीं, क्योंकि मैंने वाले पैसे दिए नहीं। तो एट द एंड ऑफ 2 इयर्स मुझे क्या देना है? आपका 100 रुपया देना है, पहले साल का ब्याज देना है, सेकेंड ईयर का ब्याज देना है, और जो फर्स्ट ईयर में ब्याज वापस करना था उसके ऊपर का भी ब्याज देना है आपको। दिस वैल्यू इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। व्हाट इज दिस वैल्यू? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। नाउ सच कैलकुलेशन वेयर यू एंड अप पेइंग interest on interest, we end up paying interest on interest is known as compound interest. जब हमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना पड़ रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। सो दिस इज वन वे ऑफ थिंकिंग। अदर वे ऑफ थिंकिंग इज, जो पैसा मेरे को देना था 1 साल बाद 10 रुपए ये मैंने नहीं दिया, तो ऐसे कैलकुलेट करने की वजह आप ये कहते हो सर प्रिंसिपल ही मैं 110 रुपया मान लेता हूं, और इसके ऊपर 10% का ब्याज 1 साल के लिए 11 रुपए बनेगा। अब 110 क्यों बनाया? बिकॉज इंटरेस्ट इज एक्यूमुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल।
interest is accumulated on the principal. So this will become new principal. So such calculation where interest is accumulated on the principal and then again we are calculating interest on this accumulated value, such calculation is compound interest. तो कोई अलग नहीं है. Compound is also a simple interest, but it is just that we are calculating interest, simple interest on the interest itself. Such calculation is known as compound interest. यहाँ तक बात समझ में आती है? Now, there will be general type of questions or one way of another. Let's say, you know, this is simple. मैं 2 रो बना देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ. 2 कॉलम बना के समझाता हूँ, थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी. ये सिंपल है और ये पैसा P है. इंटरेस्ट कितना बनेगा फर्स्ट ईयर में? P इंटू R अपॉन 100. क्यों? T कहाँ गया? अच्छा, यहां पे कितना बनेगा इंटरेस्ट? एजम्पशन क्या है? द रेट इज बीइंग कैलकुलेटेड एनुअली. अगर आप बोलो नहीं जी 6 महीने में ब्याज देना पड़ेगा तो ये चेंज हो जाएगा, वो समझाऊंगा. फिलहाल हम पर एनम का रेट ले रहे हैं. सो इफ समबडी आस्क्स यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस इन एसआई एंड सीआई एट द एंड ऑफ 1 ईयर? नो डिफरेंस. इट्स अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई एट द एंड ऑफ 1 ईयर? सेकेंड ईयर एक तो PR by 100 मिलेगा. किस पे मिलेगा? प्रिंसिपल पे. इस पे भी मिलेगा. इसको मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, P' मान लेता हूं 1 मिनट के लिए. तो इंटरेस्ट कितना बनेगा? चलेगा? बट P' कैन बी रिप्लेस्ड बाय PR by 100. लिख दूं यहां पे? चलेगा? अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये क्या बनेगा? PR by 100 प्लस PR स्क्वायर बाय. समझ में आ रहा है? नाउ दिस इज द सेकेंड ईयर इंटरेस्ट. एंड व्हाट इज द सेकेंड ईयर इंटरेस्ट हियर? एंड व्हाट इज सेकेंड ईयर इंटरेस्ट हियर? PR by 100 plus PR square by 100 square. If somebody asks you what is the difference between SI and CI for the second year only, क्या आंसर होगा? PR square by, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना है आपको. What is the difference in SI and CI for the second year? Second question. At the end of 2 years, ये भी सवाल पूछा जाएगा. पहला अभी मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? डिफरेंस बिटवीन SI and CI फॉर सेकेंड ईयर, यानी सेकेंड ईयर ओनली डिफरेंस. नाउ आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन, द डिफरेंस इन SI and CI एट द एंड ऑफ 2 years. तो यहाँ टोटल इंटरेस्ट कितना है और यहाँ टोटल इंटरेस्ट कितना है? PR by 100 प्लस PR by 100, 2 PR by 100 प्लस. सो व्हाट इज द डिफरेंस? सेम PR स्क्वायर by 100. कोई फर्क? सेकेंड ईयर का डिफरेंस और सेकेंड ईयर तक का डिफरेंस में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पहले साल में तो कोई फर्क नहीं है. तो जो फर्क सेकेंड ईयर में आ रहा है वही दोनों साल में ही आएगा. हाँ जी दृष्टि मनित, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? यस सर. ठीक. सो द डिफरेंस इन द एंड ऑफ 2 years इज PR स्क्वायर by 100 स्क्वायर. ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है एग्जाम में. ठीक है, मैं इसको ऊपर मिटा के यहाँ लिख देता हूं ताकि स्पेस मिल जाए, ऑनलाइन भी दिख जाएगा. तो ये मेरा बन गया PR by 100 प्लस. ठीक है, अब मैं इसके बाद एक कहानी सुनाऊंगा, वो तुम छोड़ सकती हो. ठीक है, तुम्हारे लिए यहां तक गुड इनफ है. जो बाकी लोग हैं वो ध्यान देंगे इस पे. यू मे बी आस्क्ड द डिफरेंस इन SI and CI एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर और द डिफरेंस इन SI and CI फॉर थर्ड ईयर. 2 सवाल बन गए. थर्ड ईयर का मैं निकाल के दिखा रहा हूं. ठीक है, PR by 100. अब देखो किस पे मिलेगा, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, बाद में इसको सिंपल. ओरिजिनल P पे मिलेगा मुझे PR by 100, ये ओरिजिनल P है. ठीक, फिर इस पे मिलेगा मुझे PR स्क्वायर by 100 स्क्वायर. ठीक, फिर इस पे भी मिलेगा मुझे और इस पे भी मिलेगा मुझे. ये बनेगा PR क्यूब by 100 क्यूब. यानी इंटरेस्ट कंपाउंड क्या था? जो पैसा इकट्ठा हो गया सब पे ब्याज मिलना है. मेरे पास ये इकट्ठा था, ये पैसा था, ये पैसा था और ये पैसा था, सब पे ब्याज मिलना चाहिए. इसका ब्याज ये, इस पैसे का ब्याज ये, इस पैसे का ब्याज ये और इस पैसे का ब्याज ये. ये किसका ब्याज है? सिर्फ
थर्ड ईयर का, ये किसका ब्याज है? थर्ड ईयर का। कितना बनेगा? PR/100 प्लस 2PR² प्लस PR³/100। समझ में आ रहा है? सो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द थर्ड ईयर ब्याज, क्या बनेगा? व्हाट इज द डिफरेंस इन SI एंड CI फॉर थर्ड ईयर ओनली? ये कट जाएगा। आंसर इज 2PR² प्लस PR³/100। समझ में आ रहा है? 2PR² प्लस PR³/100। व्हाट इज आंसर? दिस किसका आंसर है? ये द डिफरेंस इन SI एंड CI फॉर थर्ड ईयर ओनली। क्लियर है? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी द डिफरेंस इन SI एंड CI फॉर ऑल 3 years। यहां पे कितना बनेगा? 1 2 3 PR/100 और यहां कितना बनेगा? 3 PR/100 प्लस तो डिफरेंस निकालोगे तो ये कट जाएगा। बेटा दिख रहा है ऑनलाइन? लास्ट वाली लाइन दिखी है आपको? मनित दरिश्री, मुझे No, लग रहा है sir. नहीं दिखी ना? एक बार ऐड कर लो उसको, यहां तक ऐड हो रहा है ना, ये इसको ऐड करके 3 PR, ठीक है, इसको मैंने ऐड किया है यहाँ पे, हाँ दिख रहा है। ऐड करूंगा ना तो ये बनेगा 3 PR/100 प्लस अब शायद दिख रहा हो, ये कट गया क्या? ये कट गया। ठीक है, सो लिख लो इसको, ये 3 PR और ये कट जाएगा, तो माय आंसर इज 3 PR² प्लस PR³/100। This is a standard result you are expected to know, especially those into IIMs, DU, CUT. You may have to understand this also. So difference between SI and CI for the end of 3 years, ये आंसर अपना क्लियर है? यहां तक समझ में आती बात? ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट हेल्प मिलती है इसके अंदर। ठीक, ओके, मिटा दूं इस बार? हाँ जी बेटा, ऑनलाइन समझ में आया? Yes, sir. Okay, now you see, let's say let's say you have pocket money of 100 rupees, and at the end of 1 month, your dad is happy, he increases your pocket money by 10%। तो कितना हो जाएगा? 10% यानी 10/100 of 100, यही बनेगा। तो ये टोटल पैसा अगर एक महीने बाद इतना बन जाए, 1 साल के बाद इतना बन जाएगा। कैन आई से इट इज 100 into 1 + 10/100? कर सकता हूं मैं ऐसा? अगर मैं इसको सॉल्व करूं एक बार तो 100 + 10 110, यही बनेगा, नो प्रॉब्लम। अब मान लेते हैं अगले साल उन्होंने कहा चलो 10% में और बढ़ा देता हूं, 10% में और बढ़ाता हूं, तो 10% किसका बढ़ेगा? और मान लेते हैं इसका, यही बनेगा। इसको मैं ऐसे कर सकता हूं प्लस 10/100 of 110, इसमें कोई प्रॉब्लम है? जैसे यहाँ 10% इंक्रीज किया था, अब मुझे इसका 10% इंक्रीज करना है। मैं अगर 110 कॉमन ले लूं तो कैन आई से ये 1 + 10/100 बनेगा? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बट 110 तो ये भी है, ये क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 110 की जगह? क्योंकि इसी को तो सॉल्व करके ये बनाया था हमने, तो दिस विल बिकम, इसको मैं 110 की जगह मैं ये लिख रहा हूं, सो दिस इज 100 into 1 + 10/100, और ये वाली जो वैल्यू है वो यहां आ गई into 1 + 10/100। चलेगा? इसका मतलब है कि मेरे पास 100 रुपया था, पहले साल 10% इंक्रीज करके ये बन गया, अगले साल इसका 10% इंक्रीज करके ये मल्टीप्लाई हो गया। अगर अगले साल 10% और इंक्रीज करना होता तो मैं क्या करता? कर सकता था मैं या नहीं कर सकता था? यानी 3 बार इंक्रीज किया। नाउ दिस थिंग कैन एक्चुअली बी रिटन एज 100 into 1 + 10/100 की पावर 3। चलेगा? ये तो समझ में आता है, बेसिस और इक्वल पावर्स कैन बी एडेड। इफ यू लुक एट दिस थिंग, it is looking like principal into 1 + R/100 की पावर n. Do you not feel it is looking like this?
दिस इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट. व्हाट अमाउंट? कंपाउंड अमाउंट. व्हाई? बिकॉज ये जो 10 रुपए मेरे को देने थे वो मैंने दिए नहीं, उसके ऊपर फिर मैंने ब्याज लगाया. जो पैसे देने थे मैंने दिए नहीं, उसके ऊपर फिर मैंने ब्याज लगाया. तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? कंपाउंड अमाउंट. ये किसका फॉर्मूला हो गया? कंपाउंड अमाउंट. ठीक है. तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है जो हम पढ़ते हैं, जो किताब में आपको दिया हुआ है, वो ये है. मैं यहां लिख लेता हूं और फिर इसके वेरिएंट समझाऊंगा आपको, सारी पॉसिबिलिटीज. अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n. ठीक है. नो, अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बन सकता है. मान लेते हैं कुछ पैसा था मेरे पास जो लेट्स से 2 इयर्स में और लेट्स से 3 इयर्स में डबल हो गया. ठीक है. तो मुझे बताओ 16 टाइम्स कितने साल में बनेगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैंने तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है. एक पैसा था और ये किस किस केस में हुआ? कंपाउंडिंग के केस में. हमने सिंपल वाला केस तो कर लिया था. आई हैव सम मनी विच डबल्स इन 3 इयर्स बाय कंपाउंडिंग, कंपाउंड करके. इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बिकम 16 टाइम्स इज द क्वेश्चन. हाउ डू वी हैंडल दिस क्वेश्चन? Now there's a way to solve it, but then I want you to at least frame the equation so that we are able to do something. So any ideas how do we do? You see अमाउंट कितना हो रहा है? डबल. तो इसकी जगह मैं क्या लिखूं? 2p लिख दूं? चलेगा? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2. नो प्रॉब्लम्स. क्वेश्चन क्या है? 16 टाइम्स. ये सॉल्व करना है. अब अगर इसकी वैल्यू पता लग जाए, दिस इज 2 की पावर 1/3, फिर यहाँ पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा. यही बात है. तो सबसे बड़ी समझ. यहां तक कितने लोग पहुंच गए थे? वेरी गुड. इसको बनाना है. ओके. हाँ, अब अटक जाएगा. अगर मैं यहाँ 8 दे देता तो इजीली हो जाता. अब कर सकते हो, मान लो 8 दे दूं, या 16 था ना? हाँ चलो 16 ही रहने देते हैं. कैसे कर सकते हो पता है? इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 2 की पावर 4, है ना?
बेसिकली अगर मैं इसको पावर 4 रेस करूंगा तो इसको भी पावर 4 रेस करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया 16, ये क्या बन गया 12, तो n क्या बन गया 12। खत्म, क्वेश्चन सॉल्व, दैट्स ऑल। अदरवाइज सॉल्व नहीं होएगा, पंगा है। हाँ जी, समझ में आया दृष्टि? यस सर। क्लिक किया, पावर 4 रेस कर दो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से कंपाउंडिंग के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, ये हुआ वो हुआ, एंड हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगला लेवल जो क्वेश्चन बनेगा वो ये कि ये जो कंपाउंडिंग हमने करी थी ये एनुअल चल रही थी अपनी, कैसे चल रही है एनुअल। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपए लिए थे 10% पर एनम, एक साल के बाद कितना देना है मुझे 10 रुपया। अगर मैं कहता हूं कि द इंटरेस्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, मैं क्या बोलता हूं इंटरेस्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, इसका क्या मतलब है कि पहले 6 महीने का जो ब्याज आएगा वो दे दो और फिर अगले 6 महीने का ब्याज दे देना, इसका ये मतलब हाफ ईयरली। तो अगर अपन इसको हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट प्रिंसिपल ये है, रेट ये, टाइम कितना हो गया हाफ ईयर डिवाइड बाय 100। तो 6 महीने बाद मुझे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं आपको 5। मान लो मैंने 5 रुपए नहीं दिए तो अगले 6 महीने में मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 के ऊपर भी ब्याज देना पड़ेगा, या फिर हम ये कह दें 105 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर मैं मान लो इंटरेस्ट लगा लूं ये 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, तो 105 इंटू 10 अपॉन हाफ अपॉन 100 यही बनेगा। तो अगर एक साल के अंत में मैं देखूं, इस केस में चूंकि एनुअली कैलकुलेट करना था मुझे कितने देने पड़ रहे थे 10 रुपए, और अब मुझे कितने देने पड़ रहे हैं 10.25, फालतू देने पड़ रहे हैं। इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका, इस सिनेरियो का। अगर 10% पर एनम कैलकुलेट कर रहे हैं और अगर हम हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो हाफ ईयरली का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10.25%। यानी कि या तो आप ये बोले कि हाफ ईयरली कैलकुलेट कर लो, या बोले कोई नहीं तू एनुअली कर ले लेकिन इतना करना पड़ेगा, तो भी आंसर सेम आएगा। अगर कोई बोलता है कि क्वार्टरली कैलकुलेट करना, इसका क्या मतलब होता है हर 3 महीने में, तो साल में कितनी बार हो जाएगा 4 बार। तो बेसिकली अगर उसको करना पड़ेगा, वंस अगेन क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। इंटरेस्ट इज इक्वल 100 इंटू रेट, टाइम कितना हो गया 2.5 रुपए आ गया फर्स्ट ईयर, फर्स्ट क्वार्टर में। सेकेंड क्वार्टर पे किस पे देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व करना पड़ेगा 10.25 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो अगले क्वार्टर में अब कितने पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझे 102 रुपए, उसके बाद 2 रुपए 56.25, तो 25,605 अब इस पे देना पड़ेगा, फिर ऐसे 4 बार देना पड़ेगा। उससे हम क्या कर सकते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया क्वार्टरली कैलकुलेट किया। ऑब्वियसली इस टाइप से करना कम्बरसम प्रोसेस है, कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होती जाएगी। तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में ऐसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, रेट जो है वो 1/4 हो जाएगा। जैसे 10 था तो 2.5% लग रहा है ना कैलकुलेशन करके। और कितनी बार करना पड़ेगा 4 टाइम्स, मान लो 2 साल होते तो 2 साल में कितनी बार कैलकुलेशन होती 8 बार, 4 इंटू 2। अगर साल में 2 बार करना होता है तो रेट कितना होता है हाफ, और ये टाइम कितना होता है हाफ ईयरली रेट होता तो ये होता। क्वार्टरली होएगा तो मेरा अमाउंट कितना बन जाएगा, समझ में आ रहा है? अगर मंथली होता तो आ रहा है समझ में, डेली होता तो है, समझ में आ रही बात, एवरी आवर होता तो हर घंटे ब्याज चाहिए मान लो,
इंटू 24, यहाँ पे 24 हर मिनट चाहिए तो 24 इंटू 60 ऊपर, हर सेकंड चाहिए तो वाह। और अगर मैंने कहा एवरी मोमेंट चाहिए तो मतलब पैसा दिया और ब्याज लिया ऐसे फास्ट फास्ट फास्ट। नहीं उसका भी बनता है रिजल्ट, ये है ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, P इंटू ई की पावर NR/100 ये अमाउंट बनेगा फॉर इनफाइनाइट कैलकुलेशन। जो आप कह रहे हो कि भाई एवरी मोमेंट ब्याज अगर हम करेंगे, ई की वैल्यू आपको पता ही है 2.71 के आसपास होती है अप्रोक्सीमेटली, एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको, इरेशनल नंबर होता है वैसे तो। P प्रिंसिपल, E N यानी number of years, R यानी rate per annum divide by 100. So if it is being calculated infinitely, that's how it is to be approached. ठीक है, of course nobody is really going to ask you per hour per day, but quarterly या monthly possible है। तो अगर मेरे को पैसा उधार देना है तो ideally quarterly अच्छा है या monthly अच्छा है? Monthly, क्योंकि ज्यादा ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो उस सेंस में हमें ये समझ में आना चाहिए। क्लियर है ये बात? समझ में आती है तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं जहां पे हम ये कैसे करेंगे। इसके अलावा क्या बन सकता है ये भी समझा देता हूं। मान लेते हैं अभी तो क्या था कि हमारे पास रेट फिक्स था, टाइम गिवन था। अब मैं क्वेश्चन में मान लो चेंज करता हूं। क्वेश्चन में चेंज ये है कि लेटर से आपने कुछ पैसा उधार लिया, 100 मान लेते हैं। फिर आपने कहा जो रेट है फर्स्ट ईयर का जो रेट है वो 10% है, सेकेंड ईयर का जो रेट है वो 12% है, और थर्ड ईयर का जो रेट है वो 8% है। टाइम आपका 3 ईयर्स है। नॉर्मली क्या होता था, रेट हमारा एक होता था और 3 साल का हमें ब्याज कैलकुलेट करना होता था। अब प्रॉब्लम यह है कि एवरी ईयर द रेट इज चेंजिंग, रेट डायनेमिक हो गया। अब बताओ मैं क्या करूं, अमाउंट कैसे निकालूं इफ एवरीथिंग इज बीइंग कंपाउंडेड। सिंपल में तो हम अलग अलग जोड़ लेते हैं, लेकिन क्या बोल रहा है, जो पहले साल का ब्याज है वो भी चाहिए, फिर अगले साल अलग लेवल मतलब अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, फिर अगले साल अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। How do we reconcile this fact? How do we really arrive and reach at this idea? Very good. तो ये बनेगा प्रिंसिपल इंटू R1/100, ये अमाउंट बनेगा। ये फिर प्रिंसिपल एक्ट करेगा 1 प्लस R2/100, ये फिर प्रिंसिपल एक्ट करेगा R3। वेरी गुड, ऐसे ही चलता जाएगा जितने भी साल है। ऐसे ही हो रहा है जैसे आपने 100 किया, 10% यानी 1 प्लस 10/100, 110 हो जाएगा ये। इस 110 के ऊपर फिर आप 12% लगाओगे, फिर इसके ऊपर आप 8% लगाओगे। इस तरीके से चलेगा। सो इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल अगर सारे रेट बराबर होते R1 इक्वल टू R2 तो आप पावर 3 कर देते, काम खत्म हो जाता, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, हम इसको इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का क्वेश्चन बन सकता है जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है और एवरीथिंग इज बीइंग कंपाउंडेड। फिर क्या हो सकता है इसके अंदर, इसके अंदर एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मिटा दूं इसको या लिख रहे हो? कर लो, नोट कर लो, फिर बताता हूँ। मिटाओ इसको। मान लेते हैं मैंने क्वेश्चन दिया कि आपने प्रिंसिपल आपने 100 रुपए उधार लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% पर एनम है, टाइम पीरियड आपका 2 3/4 ईयर्स है मान लेते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड हमारा क्या है 2 3/4 ईयर्स। हाउ वुड यू अप्रोच दिस? आई एम श्योर यू नो द फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस 10/100 की पावर 2 3/4। अब क्या करें, यहां समस्या है फिर क्या करेंगे? सो दिस कुड बी ए क्वेश्चन जहां पे हम फंसेंगे, ट्रबल हो सकता है। फॉर्मूला तो पता है लेकिन अब इसको अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि पर एनम है। इसमें कोई डाउट है? बेसिस आर इक्वल, पावर्स कैन बी एडेड। इसको मैं सॉल्व कर लूं, 121 आ जाएगा।
121 का क्या मतलब है? 2 साल का अमाउंट। इसका क्या मतलब है? 2 साल का अमाउंट। यही बात है। कंपाउंडिंग का क्या मतलब था? कंपाउंडिंग का ये मतलब था जो पैसा इकट्ठा हो गया उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। अब 2 साल के पास मेरे पास 121 रुपए इकट्ठा हो गया है, इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 9 महीने के लिए। इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 9 महीने के लिए। ठीक है, अब इसको समझते हैं। मान लेते हैं इंटरेस्ट निकालना है मेरे को। इंटरेस्ट में प्रिंसिपल है 121, रेट है 10, टाइम है 3/4। ये आंसर आएगा। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे, ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा रेट है, ये मेरा टाइम है। अगर मैं बोलूं जी नहीं ऐसे नहीं करना मुझे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 121 इंटू 10 इंटू 3/4 इंटू 1/100। मैंने बोला जी ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम है, क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 121 रुपए पे 10% सालाना ब्याज के हिसाब से 9 महीने में जो भी ब्याज मेरा आएगा इज सेम एज 121 रुपए पे 7.5% ब्याज 1 साल के लिए। आंसर पे कोई फर्क, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया ना। यानी कि 10% ब्याज 9 महीने की जो भी आएगा इट इज सेम एज 7.5% का ब्याज 1 साल के लिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ओके, आंसर सेम आएगा 121 रुपए, 10% का रेट, 9 महीने के लिए। मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, 121 ये सॉल्व हो जाएगा। अब आप ये कह सकते थे सर यहाँ पे अगर इतना ही आसान था फ्रैक्शन को अंदर मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पे 11/3 कर देते मल्टीप्लाई। नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये क्या हो रहा है अंदर? सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन 2 साल तक कंपाउंडिंग करने के बाद ही तो सिंपल इंटरेस्ट होगा ना। अगर आपने 11/4 कर दिया तो डायरेक्टली तीनों साल का सिंपल इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कर दिया। लेकिन क्वेश्चन क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिर्फ जो फ्रैक्शनल पावर है पर एनम के केस में सिर्फ वही अलग रखना है, बाकी को सॉल्व। अब तो सॉल्व हो जाएगा। टेक्निकली इसको देखें तो ये क्या हो रहा है, 121 प्लस 121 इंटू 10 इंटू 3/4/100, यही बन रहा है। यही बनेगा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, अमाउंट आ जाएगा, आंसर सेम आएगा। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। यानी अगर फ्रैक्शनल पावर आ गई तो आप कुछ नहीं करोगे, पावर को 1 बनाओगे, फ्रैक्शन को रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम हो जाएगा। क्लियर है? ओके, ठीक है। सो दीज आर some things on based on compound interest. So these are all possibilities that we can have with compound interest. ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ concept of present value, and then we'll also try to see, you know, the more difficult part is basically calculation of EMIs, installments जिसको हम बोलते हैं, वो हम दोनों चीजें समझेंगे। तो फिलहाल मैं आपको एक कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू समझाता हूँ। ये मिटा दूं? सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ गया, कंपाउंड समझ में आया, फॉर्मूला, उसके अंदर ऑल पॉसिबल वेराइटीज हमें समझ में आ गई। ठीक है, तो अब हम एक प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझने से पहले मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, फिर हमें थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मान लेते हैं आज हमारी पॉपुलेशन 121 करोड़ की है, जो कि 10% पर एनम से ग्रो कर रही है। मान लेते हैं दिस इज 2022 में। तो मुझे बताइए 2020 में हमारी पॉपुलेशन कितनी रही होगी? समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या? आज हमारी पॉपुलेशन मान लो 121 करोड़ है, जो कि एवरी ईयर 10% पर एनम से बढ़ रही है। तो फिर मुझे बताओ 2 साल पहले हमारी पॉपुलेशन क्या रही होगी? नॉर्मली पॉपुलेशन हमेशा कंपाउंड पे होती है, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो पॉपुलेशन बढ़ गई तो अगली जनरेशन भी तो वो बढ़े वाले थोड़ी ना बोलेंगे हम बढ़े हुए लोग हैं, हम तो नहीं पैदा करेंगे बच्चे आगे, ऐसा तो नहीं होगा, वो भी करेंगे। सो दैट इज व्हाई इट इज कंपाउंडिंग। तो बताओ 2 साल पहले हमारी पॉपुलेशन क्या थी, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? क्या हम माइनस कर दें, काम चल जाएगा 10%? नहीं, क्यों?
कंपाउंड है, तो कैसे सॉल्व करें इसको? हम्म, पक्का? अच्छा, इसमें क्या गलती है? दो परसेंट गलत है ना ये? पक्का समझ में आ रहा है क्यों है? क्योंकि 10% बढ़ के कहीं चीज पहुंची तो 10% घटा के क्या वहां पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है? सो दिस इज रॉन्ग। जो 2 साल पहले पॉपुलेशन थी, मान लो वो एक्स थी, तो जो बढ़ी वो कौन सी पॉपुलेशन बढ़ी? एक्स। कितने साल तक बढ़ी? और ये बन के कितनी हुई? यानी कि 2 साल पहले मेरी पॉपुलेशन कितनी थी? 100 करोड़, जो कि 10% बढ़ के। अगर आप ये करोगे तो गलत क्यों है? ये इसलिए गलत है कि 100, इसको 10% माइनस करोगे तो 10% माइनस करोगे तो 12.1 माइनस हो जाएगा, तो 980 ये बनेगा। इसका 10% माइनस करोगे तो 10.89 होगा। तो ये आ जाएगा, 100 तो नहीं आया। अब इसको 10% बढ़ाओगे तो ये नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? तो माइनस नहीं करना, पहले देखना है तो माइनस नहीं करना है, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है? इसी इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, एक्सट्रापोलेट करते हैं। हाँ दृष्टि, समझ में आ रहा है? यस ऑनलाइन? सर। ठीक है, ओके। हम इसी आइडिया को एक्सट्रापोलेट करते हैं। मान लेते हैं मैंने आपको 121 रुपए देने थे 2 साल बाद। मैंने आपको 121 रुपए देने 2 साल बाद, और हमारा जो व्यवहार है, मतलब लेन देन का जो व्यवहार है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, और 10% पर एनम का रेट मान लो मार्केट में चलता है। यानी हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं, सिंपल भी हो सकता है बट फिलहाल हम एक बार कंपाउंड की बात कर रहे हैं। मुझे 2 साल बाद आपको 121 रुपए देने हैं, पर मैंने कहा यार 2 साल बाद तो नहीं, अभी ले ले। तो क्या मैं 121 रुपए दूंगा उसको अभी? क्यों? हाँ, प्रॉब्लम क्या है, 121 मुझे कब देने हैं? 2 साल बाद। 121 कब देने हैं मुझे? 2 साल। तो अगर मैं आज दूंगा तो थोड़ा कम दूंगा। क्यों कम दूंगा? बिकॉज अगर मैंने तुम्हें पैसे दे दिए तो तुम उसका यूज करोगे। फिलहाल तो पैसे किसके पास है? मेरे पास है। तो अगर मैंने, अब मैं यूज करूंगा, इसीलिए तो आपको ज्यादा दे रहा हूं। अगर आपको दे दिए तो कौन यूज करेगा? आप यूज करोगे। तो इसलिए मुझे आपको थोड़े से कम देने। कितने दूंगा इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹121 ड्यू इन 2 years। इसकी अंग्रेजी ऐसे बनती है। मैंने आपको कब देना है? 2 साल बाद। पर मैं क्या कह रहा हूं, आज ही ले लो। बट मैं आज वो पैसे तो दूंगा नहीं, कुछ कम दूंगा। उसको जो भी मैं दूंगा उसको बोलूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹121 ड्यू इन 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड। इसका ही मतलब है 10%, मतलब वो ड्यू कब है? 121 कब है? 2 साल बाद। किस हिसाब से है? 10% कंपाउंड। ये सिंपल भी हो सकता था, उसका भी अलग कैलकुलेशन है। ये मतलब समझ में आ रहा है? इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये 121 तो बनेगा 2 साल बाद। इसकी आज की कीमत मान लेते हैं ये है, ये 2 साल में ये बढ़ के ये बनेगा। तो जो प्रेजेंट वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? 121 डिवाइड बाय 1 प्लस 10/100 की पावर, जो कि 100 करोड़ आ रहा था। इस 100, अगर ये 121 1 साल बाद बनेगा तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर ये 2 साल बाद बनना था तो प्रेजेंट वैल्यू, अगर ये मुझे 1 साल बाद देना होता तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती? इसकी जगह अगर ये 3 साल बाद देना होता तो, 4 साल बाद देना होता तो, इसका मतलब है कि अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ nth ईयर निकालना चाहता हूं तो बोरोड अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस r बाय 100 की पावर n बनेगा। यानी फ्यूचर में जो मेरे को पे करना है
मान लो कब पे करना है ये, n ईयर्स के बाद में। कैसे पे करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो ये वाला रेट बन जाएगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज को मुझे फ्यूचर में देना है, और अगर मैं उसको आज वापस कर रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा कम देना पड़ेगा। वो कम कितना देना पड़ेगा, वो इतना देना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत है? पक्का? अब मैं इसका एप्लीकेशन समझाता हूं, ये क्वेश्चन कैसे आते हैं और हमें कैसे इस पे काम करना है। ठीक, ये क्वेश्चन आते हैं, मान लेते हैं आज आपने कोई चीज सामान खरीदा, 50,000 रुपए का सामान खरीद लिया मान लेते हैं, ठीक है, और आपने डाउन पेमेंट कर दी 20,000 रुपए। 50,000 का सामान था, आपने 20,000 डाउन पेमेंट कर दी, वो तो अभी के अभी दे दी। आपको देने 30,000 रुपए। आपने कहा जी 30,000 तो है नहीं, आप मुझे 3 इंस्टॉलमेंट बना दो। अब इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है इक्वल वैल्यू, इक्वेटेड। हम नॉर्मली ईएमआई बोलते हैं। ईएमआई क्या होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए एग्जाम में कोई मंथली का क्वेश्चन नहीं पूछता, एनुअल इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन बनता है। उसको मैं कन्वर्ट करके बता दूंगा कि मंथली करना हो तो क्या करें, बट प्रैक्टिकल बात यह है कि हम 3 साल में 36 महीने होते हैं, 36 महीने का हम कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर 3 इंस्टॉलमेंट बनानी है, इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक। अब इक्वल इंस्टॉलमेंट बनानी है, एक एजम्पशन है कि बाजार का रेट मान लेते हैं 12% है, और कैलकुलेशन क्या है मेरी, कंपाउंड। ये तो क्लियर करना पड़ेगा भाई, किस हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ब्याज 12% और कंपाउंडेड एनुअली। अब इसको कैसे हम 3 इंस्टॉलमेंट में बनाएं, समझ में आ रहा है? अब 3 इंस्टॉलमेंट का मतलब है एक साल के अंत में मैं उसको कुछ पैसे देना चाहता हूं, मान लेते हैं x। सेकेंड ईयर के अंत में फिर मैं x देना चाहता हूं, और थर्ड ईयर के अंत में फिर मैं x देना चाहता हूं, और मेरे देनदारी पूरी हो जानी चाहिए। आई हैव, या तो मैं आज आपको 30,000 रुपए और दे दूं, काम नक्की हो जाएगा। या आपने कहा कि 3 इंस्टॉलमेंट बनाओ, ये फर्स्ट ईयर के एंड की इंस्टॉलमेंट है, ये सेकेंड ईयर के एंड की इंस्टॉलमेंट है, और ये थर्ड ईयर एंड की। ये इंस्टॉलमेंट वैल्यू सेम होगी, और ये पैसा प्लस ये पैसा प्लस ये पैसा शुड क्लियर ऑल माई ड्यूज। तो ये कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? अब इसको कैसे करना है ये बताओ, कैसे कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि हम 3 साल बाद दे रहे हैं ना, इसमें इंटरेस्ट ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दूं। डिवाइड बाय 3 करूंगा तो जब मैंने कुछ पैसे दे दिए तो अगले साल उस बचे हुए उस पैसे पे थोड़ा इंटरेस्ट दूंगा, बचे हुए पे देना है ना मेरे को। तो कंपाउंड लगा दिया, चलो मान लो लगा दिया, फिर इसको डिवाइड बाय 3 कर दूं, यानी ये पैसे दे दूं हर साल 10,000 इंटू ये, ज्यादा हो जाएगा। मैं क्यों दूंगा भाई, जो पैसे दे दिए उस पर थोड़ा ना ब्याज दूंगा मैं, रिड्यूसिंग बैलेंस पे तो होता है ना इंटरेस्ट। पहले 10,000, वो पता कैसे चलेगा 10,000 पे देना है? लेकिन वैल्यू तो सेम होनी चाहिए, ये तीनों वैल्यू तो सेम होनी चाहिए भाई। अलग अलग वो भी तो ठीक है कि पहले इस पे पहले 30,000 रुपए दे देंगे, 30,000 पे 3600 रुपए दे देंगे, फिर जो पैसा दे दिया माइनस कर देंगे, फिर बचा हुआ दे देंगे, फिर लेकिन अमाउंट तो अलग अलग हो जाएगी, तो इंस्टॉलमेंट थोड़ी ना बनी। तो नहीं 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 नहीं, ओके। इसको मैं कोशिश करता हूं पहले प्रेजेंट वैल्यू से समझाने की, नहीं आए तो मुझे बताना, फिर मैं दूसरा अप्रोच लगा दूंगा। देखो, अपन चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है ये सेम होए, और तीनों वैल्यू मिला के मेरी आज की देनदारी है। ये कब की देनदारी है? आज की। ये पैसा मुझे कब देना है? 1 साल बाद। इस 1 साल बाद x रुपए की आज की कीमत कितनी होगी? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? ये x कब देना है अपने को? 1 साल बाद। आज की कीमत मुझे पता नहीं, मान लो y है, इस y के ऊपर मेरा ब्याज बनेगा 1 साल बाद। तो ये y जो आज है 1 साल बाद x बन जाएगा। समझ में आ रहा है? आज मान लो मैं y देता, 1 साल बाद x बनता,
तो x की वैल्यू कितनी आएगी? What is y? Y is the present value of x due in 1 year at 12% compounded per annum. तो समझ में आ रहा है? ये मेरे को कब देना है? ये देना है, ये कैश कितना निकलेगा? x कब निकलेगा? अगर उसको मैं आज की कीमत, आज की वैल्यू में कन्वर्ट करूं तो कितनी वैल्यू बनेगी? अभी अभी तो बनाया था, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू बोरोड अपॉन 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 1 साल बाद। ये पैसा कब देना है अपन ने? 2 साल बाद x बनना है। आज कितना होगा? आज की कीमत क्या है इसकी? ये पैसा कब देना है अपने को? आज की कीमत क्या है? ये पूरा आज की कीमत है, ये भी आज की कीमत है और ये भी आज की कीमत है। तो आज की कीमत अगर मैं जोड़ दूं तो आज की देनदारी के बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हो गया इक्वेशन, x की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। पल्ले पड़ रही है? तरीका नंबर 2 लगाएं। ओके, मैं एक और तरीके से समझाता हूं, पहुंचेंगे यहीं, उसे कोई फर्क नहीं। आज मेरे को 3,000 देने हैं, 30,000 देने हैं। आपने कहा ऐसा है, छोड़ मैं तेरे को ना 3 साल बाद ले लियो मेरे से इकट्ठे। कितने पैसे देने पड़ते हैं उसको 3 साल बाद? देने पड़ते, इसमें कोई दिक्कत? आपको मन में पता है, क्या पता है कि आपने बोल तो दिया 3 साल बाद दे दूंगा, बट आपसे पैसे इकट्ठे नहीं होते, आपसे पैसे इकट्ठे नहीं होते। तो आपने सोचा कि मैं ना हर साल के में कुछ कुछ पैसे बैंक में डाल दूंगा, हर साल कुछ कुछ पैसे मैं बैंक में डाल दूंगा, ठीक है? तो उसने बोला कि मैं x रुपए बैंक में डाल देता हूं, 1 साल के अंत में मैं बैंक में डाल दूंगा और तीसरे साल के अंत में मैं निकाल लूंगा। और इस पे क्या इकट्ठा होगा 2 साल तक? मान लो 1 साल के बाद मैंने बैंक में डाल दिए, ठीक है? और कब निकालने हैं मुझे? 2 साल बाद निकालने, ठीक है? तो इस पे ब्याज इकट्ठा हो जाएगा कुछ, तो समझ में आ रहा है? तो मान लो ये मैंने 1 साल बाद डाल दिया, ये मैंने अगले साल में डाल दिया और ये मैंने तीसरे साल में डाला। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? इसको मैं 2 साल बाद निकालने जाऊंगा तो मुझे इस पे ब्याज मिल जाएगा इतना, x रुपए मैंने खाते में डाले थे, लेकिन जब निकालने जाऊंगा तो इतने पैसे मिलेंगे मुझे। अगले साल के एंड में मैंने ये डाला तो 1 साल तक पड़ा रहा बैंक में, इसको निकालने जाऊंगा तो इतने पैसे मिलेंगे मुझे। और ये मैंने तीसरे साल के अंत में जैसे ही डाला, वो मांगने वाला आ गया, भाई दे मेरे पैसे, तो इस पे कुछ ब्याज मिलेगा। फिर तुम्हें इमीडिएटली निकालिए, डाले सुबह निकाले शाम को निकालिए। अब तुमने कहा ये ले, मैंने ये पैसे प्लस ये पैसे प्लस ये पैसे इकट्ठे हो गए, बोले ले भाई तू तेरी उधारी चुका देता हूं मैं, पहले तो चुक जाएगी उधारी। अब ये एक्स हमने क्या किया, हमने अपने मन से बना लिया, इंस्टॉलमेंट बैंक में डाल दिया 1 साल बाद, और वो बैंक में हमने कहा भी पैसे बढ़ेंगे, एफडी करा दी, 2 साल बाद निकल, तो इतने मिले, डाले कितने थे एक्स, निकलेंगे कितने, इतने। अगले साल के एंड में डाले थे एक्स, निकलेंगे इतने, तीसरे साल में डाले एक्स और इमीडिएटली निकाल ले तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये इक्वेशन बन गई, एक्स की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं टेक्निकली। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं नीचे तो देखो क्या बनता है, 30,000 इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस 12 बाय 100 की पावर 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 12 बाय 100 की पावर 3। ये क्या बनेगा, x इंटू 1 प्लस 12 बाय 100 की पावर 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 12 बाय 100 की पावर 3। ये क्या बनेगा, x डिवाइड बाय 1 प्लस 12 बाय 100 की पावर बनेगा। ये स्क्वायर क्यूब से कटेगा, एक बचेगा, ये यहां स्क्वायर बचेगा, तो ये बना x अपॉन 1 प्लस 12 बाय 100 की पावर 1, x बाय 1 प्लस 12 बाय 100 की पावर 2, 1 प्लस x बाय 100 की पावर 3। इज इट लुकिंग लाइक दिस? तो इसको सोचने को आप ऐसे समझ सकते हो,
ईएमआई इंस्टॉलमेंट क्या है, एक्स। हमें एक्चुअल क्या वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है, एक्स। सॉल्व करके एक्स निकाल सकते हैं अपन। कुछ समझ आ रहा है? ठीक है, किताब में इसका ऐसा फॉर्मूला दिया गया होगा, इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया होगा उसको। हालांकि हम इसके जीपी बना के, ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन बना के जनरलाइज भी कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली मैं एक बार जनरली समझा देता हूं। तो हो क्या रहा है, जो मेरी आज की बोरोड अमाउंट है, ये एक्स कॉमन, इंस्टॉलमेंट कॉमन निकाल देता हूं, ठीक है। ये 100 + 12 ऊपर आ जाएगा 100, तो बनेगा 100 अपॉन 100 + r, ये रेट है की पावर 1। ये क्या बनेगा 100/100 + r की पावर 2। समझ में आ रहा है? ये क्या बनेगा 100 अपॉन 100 + r की पावर। ये फॉर्मूला आपको हो सकता है आपकी बुक में ये वाला दिया हो। अब ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि समझें, समझ के करना है वरना भूल जाओगे। बस ये मेरी मतलब इंटेंशन है आपको समझाने, कितना टाइम लगाने की, भी आपको समझ आ जाए एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं हम, कैसे कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, मेकिंग सेंस? अब हम इसको सिंपल इंटरेस्ट पे भी कैलकुलेट करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में कैसे हिसाब किताब बनेगा। लॉजिक सेम है, बिल्कुल सेम है, उसमें प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं और जनरल मेथड भी मैं बता सकता हूँ। अगर ये मंथली होता ना तो मुझे इसको r/12 करना पड़ता। समझ में आ रहा है? तो ये r/12 1 बनता, ये सब 1 1 बनता। लेकिन ये कितनी बार करना पड़ता है ऐसे में, जो 36 बार, 3 साल है ना, 36 बार करना पड़ता। तो ऑब्वियसली वी कांट डू दैट इन एग्जामिनेशन अनलेस वी आर एबल टू डू दैट। जीपी लगा के हम एन टर्म्स की सीरीज का सम निकालें, हमको करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट पे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको इस तरीके से करने के लिए, ठीक है। इसी को मैं अगर सिंपल इंटरेस्ट में कैलकुलेट करूं तो मैं एक बार जनरलाइज करके दिखा देता हूं, फिर आपको एक एग्जांपल लेके भी दिखा देता हूं, ठीक है, फिर हम देख लेंगे। बिठा दो ना। मान लेते हैं मुझे 120 रुपए देने थे आफ्टर 2 इयर्स, 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये कब देने, 2 साल बाद। तो आज की कीमत निकालें। आज मान लो मैंने x रुपए देने आपको, आज फ्यूचर में कितने होने चाहिए 120, कब 2 साल बाद। आज कितने हैं x, तो आज अगर x है तो उसके ऊपर 2 साल तक का मुझे 10% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। अगर मैं तो 2 साल बाद देना, अगर ना देता तो मैं रख लेता तो मैं इतना कमा लेता। ये मेरा पैसा प्लस ये कैसा 120 रुपए होने चाहिए। x कैन बी 1 + 2 × 10 / 100 = 120। x की वैल्यू बनेगी 120 अपॉन 1 + 2 × 10/100। ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई। यानी कि जो ये फ्यूचर की वैल्यू है, बोरोड अमाउंट, ये बोरोड अमाउंट है, मतलब या जो फ्यूचर में देना है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू p, उसके ऊपर r के हिसाब से रेट मिलेगा, n ईयर्स तक मिलेगा, डिवाइड बाय 100, यही करना है। तो जो प्रेजेंट वैल्यू है इसको हम कर सकते हैं 1 + nr/100। तो प्रेजेंट वैल्यू बनेगी बोरोड वैल्यू अपॉन 1 + nr/100। ये फॉर्मूला है कैसा, सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का प्रेजेंट वैल्यू का। मतलब क्या है, मतलब ये है, मान लो 50,000 का सामान लिया या 5,000 का सामान लिया, 2,000 दे दिए, 3,000 देने हैं, 3,000 की इंस्टॉलमेंट बनानी है अपने को 3, ठीक। 3,000 आज दे देता तो काम चल जाता। ये इंस्टॉलमेंट कब दूंगा मैं, 1 साल बाद। ये कब दूंगा, 2 साल बाद। ये कब दूंगा, 3 साल बाद। इसकी जो आज की कीमत है 1 + 10 × 1/100, ये इसकी आज की कीमत है। ये कब दूंगा,
2 साल बाद तो आज की कीमत और कम हो जाएगी। और ये कब दूंगा? 3 साल बाद। ये इसके बराबर होना चाहिए। इसको अगर मैं जनरलाइज कर दूं, इंस्टॉलमेंट है, 100 ऊपर चला जाएगा, 100 प्लस 1 इंटू आर प्लस 100 अपॉन 100 प्लस 2 इंटू आर प्लस 100 अपॉन 100 प्लस 3 इंटू आर। सो ठीक है, n ईयर्स तक इस टाइप से। एक तरीका तो ये समझने का है। दूसरा तरीका ये 3,000 रुपए हैं, 3 साल बाद देने हैं। मान लो मैंने x रुपए आज दे दिए, तो मैंने फ्यूचर का ब्याज भी दे दिया उसको। मान लो 3 साल में देना था, तो मैंने 1 साल के अंत में दे दिया, तो इसका मैंने 2 साल तक का ब्याज दे दिया। ये हाइपोथेटिकली ये चला गया। फिर मैंने x दिया और इसका मैंने 1 साल तक का ब्याज दे दिया, और फिर मेरे को x तो देना ही था, तो ये पैसा प्लस ये पैसा प्लस ये पैसा इसके बराबर होना चाहिए। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसका फायदा ये है कि मान लो 3x हो जाएगा, प्लस x कॉमन निकाल सकते हैं, 100 कॉमन निकाल सकते हैं और रेट कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचेगा? 1 2 3 ऐसे बनता जाएगा, अंदर बनेगा 1 + 2। यानी अगर n ईयर्स हैं तो n-1 तक आ जाएगा अंदर, सम टू n टर्म्स लग जाएगा। सम टू n समझ में, n × n + 1/2 वो फॉर्मूला लग के हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं। बट दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ डू यू फाइंड आउट installments, annual installments for a given percentages. So this will take care of your basic understanding as far as SI, simple interest and compound interest, plus present value का concept, plus installment का concept। इस तरीके से हम सारे concepts को कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? किताबें लाए हो? दिखाओ, निकालो। जो नहीं लाए मैं शेयर करता हूँ एक बार कुछ। Just take out your books. ग्रुप में तो होना सब लोग। अच्छा ठीक है,
आया है क्या सबके पास? क्या नहीं आया?